Today I am going to teach you grammar section for class 8, 9 and 10. Narration. Narration is a very important chapter for you. So you listen my lecture very minutely. Narration. First you know about the word narration. The word narration derives from narrate, means to speak. You know, the word narration derives from narrate, means to speak. So we can say narration means a speech. In grammar book you also find a speech. Narration has two kinds. Narration has two kinds. First, direct narration or a speech. Second, indirect narration or a speech. You know about the direct narration. Direct narration reporting his actual words. Indirect narration reporting his actual words. And indirect narration reporting his words in the form of a narrative. So, first you understand, narration has two kinds: direct narration, indirect narration. In indirect narration, reporting his words the form of a narrative, or indirect narration reporting his actual words. Then you know about some important words related to direct speech. In direct speech, you find some important words like this: direct speech, first, reporting clause, or second, reported speech. Reporting clause or second, reported speech. Direct speech divided into two parts: reporting clause, reported speech. As for example, I want to write Amit said, comma, inverted comma, I cannot help you. I cannot help him. Full stop, inverted comma. Close. So Amit said is reporting clause.
I cannot help him is reported speech. Reported speech. These two parts of direct speech, reporting clause or reported speech. Amit is the subject of reporting clause. Said is the verb of reporting clause. So we can say reporting verb said. This is the comma and this is the inverted comma. Inverted comma is very important. In under inverted comma, we find reported speech. I cannot help him is reported speech. This is the parts of direct speech. You try to then I know I want to describe how to change direct speech into indirect speech. It is very important for you. How to change direct speech to indirect speech. If you first you understand how to change direct speech to indirect speech. How to change direct speech into indirect speech. There are two important rules for changing direct speech into indirect speech. First rule is called general rule, and second special rule. देखिए, फर्स्ट जो जनरल रूल है, ये जनरल का मतलब होता है सामान्य नियम और स्पेशल का मतलब होता है विशेष नियम। तो सामान्य नियम का प्रयोग हम हर तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। अब आपको जानना जरूरी है कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं। तो सेंटेंसेस नरेशन पढ़ने के लिए सेंटेंस को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑपरेटिव सेंटेंस, चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह से 5 भागों में हम सेंटेंस को पार्ट करके नरेशन में फर्स्ट असर्टिव, सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड ऑपरेटिव, फोर्थ इंपेरेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। अब ये पांचों सेंटेंस में जनरल रूल समान रूप से लागू होता है। जनरल रूल का मतलब होता है कि हर तरह के सेंटेंस में हम जिस रूल का यूज करते हैं उसी को हम जनरल रूल कहते हैं। तो जनरल रूल को हम बांटते हैं। जनरल रूल में हम 3 चीज को स्पेशली पढ़ते हैं: चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जनरल रूल में हम देखेंगे कि जनरल रूल को हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जनरल रूल, इसके 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा पार्ट हो गया चेंज ऑफ टेंस और तीसरा पार्ट हो गया चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चेंज ऑफ पर्सन, हम लोग जानते हैं कि पर्सन 3 होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जो बोलने वाला हो, स्पीकर फर्स्ट पर्सन होता है। जो सुनता है, जो लिसनर होता है, वह सेकंड पर्सन कहलाता है। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं
जो वहां उपस्थित नहीं होता है उसको हम लोग थर्ड पर्सन। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम पर्सन को कैसे चेंज करें। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हमको ध्यान देना है, चेंज ऑफ टेंस के बारे में। टेंस के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहां देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों जगह हम टेंस को देखेंगे कि रिपोर्टिंग क्लॉज में कौन सा टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है। फिर उसको बदलने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम के आधार पर हम चेंज ऑफ टेंसेस को देखेंगे। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जानते हैं, वर्ड्स आर कैटेगोराइज्ड इनटू 8 क्लासेस एंड these 8 classes are called parts of speech, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को देखते हैं। अब पर्सन और टेंस के अलावे जो ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम लोग कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब तीनों हम लोग समझ लेंगे तो ये वैसा रूल है जो हर प्रकार के टेंसेज में लागू होता है, हर प्रकार के सेंटेंसेज में लागू होंगे, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। इसलिए ये जनरल रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जनरल रूल को फिर हम अगले क्लास में बताएंगे कि इसको कैसे करना है। थैंक्स।